you so much. First of all, thank you so much for being here. It means a lot to us. हमारे शो का नाम है आनंदी बा और एमिली. ये हमारी मेन कास्ट है. Dhaval is playing Agya. August is playing my Fua. Gulabdas Fua. Then Anandi Ba. Kanchan ma'am is playing Anandi Ba. I'm Mishkat. I'm playing Arav. We have a debutant from Hollywood, Jazzy Ballerini playing Emily. There's Shruti Kola playing Kanchan Fui. There's Shweta Rajput playing Pinky. There's Shruti Rawat playing Gunjan Bhavi. Yeah. So हमारा शो गोंडल गुजरात में बेस्ड है. गोंडल की जो कह सकते हो एक तरह से काइंड ऑफ द मेन पर्सन इन गोंडल जो बाहुबली जैसी है, जो है आनंदी बा, जिनके साथ सब कुछ चलता है गोंडल में. हम दो उनके बेटे हैं, आज्ञा और मैं आरव. आनंदी बा का मैं लाडला हूँ. एंड मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे कुछ भी करके अमेरिका जाना है. और मेरी माँ का ही सपना है कि मेरा ये सपना कभी पूरा ना हो. तो एक दिन अचानक मेरे छोटे से शहर में एमिली आती है कुछ काम से. वो किसी के बदले आई है, बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गई है. एंड मैं इसे देखता हूँ और मुझे लगता है कि ये मेरा अमेरिका जाने का टिकट है. एंड कैसे ये इक्वेशन डेवलप होता है, ये हमारे शो का बेसिक प्रीमाइस है. ओके, जब आपको स्टोरी का प्लॉट, जब शो का प्लॉट पता चला, तो ये बहुत स्मॉल टाउन की स्टोरी टाइप से है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो आप लोगों का सबसे पहला रिएक्शन क्या था? लाइक ये कितना लोगों को लोग एक्सेप्ट करेंगे ये चीज़ को? वो मुझे नहीं पता होगा, बिकॉज कैन नेवर प्रेडिक्ट कि ऑडियंस क्या पसंद करेगी, क्या पसंद नहीं करेगी. यही मेहनत होती है कि हम लोग एक अच्छा शो बनाएं और कुछ हल्का सा अलग बनाएं ताकि लोग उसे पसंद करें. तो बस यही एम है. What was your reaction जब आप लोगों को अप्रोच किया गया? मुझे तो खैर 2 साल बाद इस शो के लिए जब कॉल आया, क्या हाल मिस्टर पांचाल का होने के बाद, तो उससे ये काफ़ी डिफरेंट था मेरा कैरेक्टर. तो मैंने इसे एक्सेप्ट किया. छोटे शहर की स्टोरी है या मेन मेट्रो सिटी की स्टोरी है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि अगर जब हम अपने कैरेक्टर्स के बीच में देखते हैं कि हम किस तरह से स्टोरी को चलाने वाले हैं और किस स्टोरी के साथ हम खेलने वाले हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है. तो मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छा कैरेक्टर रहेगा मुझे प्ले करने के लिए, और इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं इस फैमिली में जो लोगों को पसंद आएंगे. Emily, tell us something about you and how did you manage to get into the Indianized Hindi show as such? So I was called here by Optimistic Entertainment to take part in the show, and I had no idea like what an Indian TV show was. I had no idea how big this is. I had no idea what is a Star Plus. I had no idea about anything. I was a complete fish out of water. So when I first came here, this was 1 year ago. So I got called 1 year ago. I spent about three months learning Hindi, getting settled in, and it was a little bit of a task. I was given a Hindi teacher. I was given a lot of help. My production have helped me a lot, and slowly I've gotten there, and now I can understand Hindi, can speak a little bit of Hindi. So my journey was obviously a little bit different to some like other people. But I'm very grateful for the opportunity I've been given, and I can put my foot in to the Indian TV industry, and that's such an amazing thing as a foreigner from the other side of the world. I feel very, very lucky. तो अभी कितनी हिंदी आती है आपको, और आपके किरदार के बारे में थोड़ा हिंदी में ही बताएंगे? हिंदी में बात करो, मुझे थोड़ी हिंदी आती है. Will do whatever the way you manage. अपने कैरेक्टर What is your character in this serial? Tell us something about your character. तो एमिली बहुत इंटेलिजेंट लड़की है. एमिली बहुत इनोसेंट लड़की है. she's very family orientated. She's innocent but कोई भोली भाली लड़की नहीं है. She is smart. She tries hard. She's a go-getter and she loves family. So कितनी अच्छी हिंदी. Very good, very good. मैं कोशिश करूँगी. I'm sorry. Okay, so what all challenges you have faced during the shooting time? During shooting, I did not have to face
too many challenges. My only challenge was between the language and the acting because I'm not an experienced actress. Luckily, the role I'm playing is almost identical to Jazzy because personally I'm quite similar to Emily. I came to India, I didn't have any family, I didn't have any friends, I didn't speak the language. I'm very traditional as well. So all of these things that I can just put into my own character. So I didn't have to face too many problems, but the main thing was the language. And luckily my whole team, my cast have supported me and helped me. Every single person has been standing with me. Even if I take so much time to say one line, they don't show, you know, any impatience, so they supported with me. So It's all done behind your back. That's okay. Not on my face. ओके जब शो के प्रोमोज को देखा गया बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों को मिला गया, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार प्लस का एक और शो था टू मैमे करके, और ये सास बहू का बैंटर देख के बहुत से लोगों को उस शो की याद आ रही है। कहीं ना कहीं लगता है कि कंपैरिजन भी एक हो रहा है साथ में। अच्छी बात है कि उनको एक अच्छे शो की याद आ रही है, वो कंपैरिजन हो, एंड अगर वही सक्सेस हमारे शो को मिल जाए तो उससे अच्छी बात हो नहीं सकती हमारे लिए। सो आई होप वी कैन बी लाइक हैव आवर ओन आइडेंटिटी एट द सेम टाइम बी एज सक्सेसफुल एज देम पॉसिबल। ओके मिशकत, आपसे अगर हम पूछें इट्स मिशकात। सॉरी ओके, सो जैसी के साथ आप जब पता चला कि एक फॉरेनर विदेशी बहू बनकर आने वाली है, फॉरेनर लड़का, आपका रिएक्शन क्या था? कितना कंफर्टेबल आप फील करे जब जब फर्स्ट शूटिंग डे था, कितना कंफर्टेबल आपने फील किया या उनको फील करवाया? तो इस शो के जो मेकर्स है, हेमंत सर, लाइक ही इज द फिक्शन हेड ऑफ मिस्टेक्स, उन्होंने मुझे बुलाया था शो का नरेशन देने के लिए। तभी शोड मी हर ऑडिशन एंड तभी उन्होंने ये भी नरेशन ऑफ द शो, लेकिन बोला नहीं कि एक फॉरेनर आने वाली, सच में एक ब्रिटिशर आने वाली है, मतलब ऐसा होने वाला है। तो व्हेन आई सॉ, आई एम लाइक, हिंदी कैसे बोल रही है? एंड आई वाज रियली अमेज्ड कि शी इज स्पीकिंग हिंदी ब्रिलियंटली। सो हमारा वर्कशॉप का शो शुरू होने से पहले एक हफ्ते का, दैट्स व्हेन वी आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद जैज़ी अ लॉट। Initially there were a few hiccups, there's some miscommunication happening between us, but eventually I think now we are really close, we are really good friends, and it's very easy to work with her. She has a great sense of humor, which is very important for me कि मेरे एक्टर के पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर हो और सपोर्टिंग हो, क्योंकि मैं बकवास करते रहता हूँ और ये उसे बर्दाश्त कर लेती है। It was hard at the start. That's I what was I like, said. Yeah. excuse me. She's not handsome, yeah, but then now she knows me and she understands me a lot better, and vice versa. तो जब मुझे मालूम पड़ा कि एक फॉरेनर है, I was like, yes. क्यों? मैं हॉलीवुड नहीं जा पाया, हॉलीवुड यहाँ पे आ गया। So हाँ, it was very easy. It's very easy working with her. She's a brilliant actor. उसे पता भी नहीं है कितनी अच्छी एक्टर है। हिंदी आराम से बोल लेती है, मतलब जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है। कोई ऐसा सीन जो आपने किया होगा साथ में बहुत मतलब यादगार हो अभी तक, कोई ऐसा सीन किया होगा आपने साथ में दोनों? यादगार सीन नहीं, इंट्रोडक्शन सीन अभी जब जैज़ी का इंट्रोडक्शन सीन होता है। Oh yeah, that was so funny. जब आप शो देखोगे, मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, तो वो पहला प्रॉपर सीन था जिसमें जैज़ी को अच्छे से एक्टिंग करनी थी और उसने फटाफट आधे घंटे के अंदर कर लिया और इतने अच्छे से किया। जब शो देखोगे ना, आप ताली मारोगे इसका। With the boom in OTT, कई बार ऐसा हो रहा है कि जो टीवी सीरियल्स हैं उनको OTT पर ज़्यादा अच्छे TRP मिल रही है। How much are you confident with this show's concept कि इसको टीवी पर भी उतना ही प्यार किया जाएगा? How confident I am कि इसे टीवी पे प्यार किया जाए? Yeah. इट्स अ फैमिली शो एक्चुअली, आप फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आप इवनिंग टाइम में बच्चों के साथ सबके साथ बैठ के नहीं देख सकते। ये एक ऐसा शो है जिसे आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट हो? यस, माँ ने बोल दिया कॉन्फिडेंट है तो बस कर लो। मुझे भी confident हूँ। अरे देखो, आपकी और इनकी काफ़ी नोकझोंक देखने को मिलेगी। आप तो फिरंगन आई गेस बहू लेकर आएंगी, सो कैसी होगी ये बॉन्डिंग? क्योंकि फिरंगन है तो आप किस तरह से माइंडसेट है आपका? देखिए बॉन्डिंग अभी तक तो हुई नहीं है, ठीक है। मतलब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अभी बॉन्डिंग हुई नहीं है। ये अब कैसे आ गई है, किन सिचुएशंस में आई है और कैसे अब ये घर में हमारे साथ माहौल में मिक्सअप होगी और मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी कि नहीं करूँगी, ये तो
नहीं, अभी तक हमारी ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है घर में। अभी तक soon to come. So what are your plans for bonding with them, since I think it would take time for you to dwell with them? So what are your plans for that? So I think Emily half the time doesn't know that she's doing something wrong until she gets into a lot of trouble. So Emily will definitely learn as she goes along. It's all new, so just like how I'm experiencing, how can we know until we make a mistake and then they say no, not like that, then okay, we won't do that again. But there's a lot of mistakes to be made, so I think there will be a lot of time until Baha will love me. Since you are in Mumbai, we'd like to know from your co-stars as well, that how are they helping you to explore Mumbai and Maharashtrian culture, I would say. So we are working a lot, almost all day, so we don't get a lot of time to explore too much of Mumbai. But they're helping me in every way. So if I get sick, everyone is there supporting me. If I'm unwell, I was very sick at one time, so everyone was there taking care of me. And also emotional support. I'm here alone, so everyone has acted like, each person here has acted like a family member. If I'm upset, if I'm frustrated, everyone comes and talks to me and supports me and makes me feel better. So they help me as in emotionally more than anything as well. Which foods have you been exploring these days? Food. Food? What food have you been eating? I eat Indian food every day. I love Indian food. I can cook Indian food. My family back at home, we love Indian food. Yeah, I even brought one time kheer on set. आप इनसे क्या कुछ ले रहे हैं? ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात की जाए या फिर कुछ ऐसा जो she has been teaching you? स्पेनिश सिखा रही है मुझे, इसे स्पेनिश बोल सकती है, पता नहीं जो भी सिखाती है मैं बोल देता हूँ, अच्छा बुरा मुझे पता नहीं। कौन सा वो वाला? वो वाला है कि वो वाला? जो पहले जो सिखाया था वो मत वो वाला नहीं, वो वाला किसे बोलते स्पेन में चला गया हाँ, बोलती नहीं ये बहुत अच्छी बात है, मैं बोलता फिर गूगल करता हूँ ये क्या सिखा दी तुमने। तो हाँ आप इंटरेस्ट किए उनके बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ बता दीजिए। वो आप प्लीज। हाँ सभी तो बड़े बेटे आज्ञा शुरू करेंगे। पहले मुझे बाकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, अगर बाप की आज्ञा हो तो मैं इंटरव्यू दूं। आज्ञा है, आज्ञा तो ठीक बा। मेरा कैरेक्टर आज्ञा है, मैं जो भी काम करता हूँ बाकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं करता हूँ। मतलब मुझे किसी को कॉल भी करना है तो भी बाकी आज्ञा लेनी है, और बाकी सामने मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ, ऐसे ही बैठता हूँ। जब तक बाकी आज्ञा मुझे ना मिले तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करता। इवन मेरा जो भाई है नानका, उसको भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ जब तक बाकी आज्ञा मुझे ना मिले। मेरी वाइफ गुंजन, मेरी वाइफ जो गुंजन श्रुति, उसको भी मैं उससे भी बात नहीं करता हूँ जब तक मुझे बाकी आज्ञा ना मिले। तो इतना आज्ञाकारी बेटा दिखाया। मिशका भाई मेरा सवाल आपसे है। अरे नहीं, वो सब काश अपना कैरेक्टर के बारे में कुछ बता रहे। नमस्कार, मेरा बहुत ही जो शायद ही सबसे ही हैप्पी मेल पर्सन ऑन द प्लैनेट, उसका विश्वास है कि वो है, क्योंकि वो गोंडल की सांगाणी भवन की आनंदीबेन सांगाणी का बहनोई और घर जमाई। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ घर पे रहते हैं। एक परिमल बाबा है जिन पे इनको अदम्य विश्वास है, और परिमल बाबा जो भी कहते हैं कि भाई इस हफ्ते तुम्हें सपेरा बनना है तो सपेरा बन जाता है, इस हफ्ते तुम्हें उल्टा चलना है तो उल्टा चलने लगता है, इस हफ्ते तुम्हें झूठ बोलना है या जो, ऐसे ही परिमल बाबा कुछ ना कुछ उसको बोलते रहते हैं। ऐसे बाबाओं से तो भारतीय लोग परिचित ही हैं। एक आते थे कि भाई नीली चटनी खाइए, नीली चटनी खाइए वगैरह वगैरह। तो ऐसे बाबा के ये भक्त हैं, और आनंदीबेन के लिए नासूर बने हैं। इस घर में रोटियां तोड़ते रहते हैं, और इनका जो भी मनोरथ हो कि मुझे ये करना है वो करना है, उसको कैसे तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, और एक मॉडर्न शकुनी टाइप इसको कहा जा सकता है। ये शकुनी है कि भाई इनका जैसे आनंदी बा और एमिली, तो ऑब्वियसली एमिली की साइड इसलिए है, ऐसे नहीं क्योंकि अच्छी बहू है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो आनंदी बेन के आंख में चुभती है, इसलिए वो नहीं आओ बहू आओ, हम कैसे आनंदी बेन का दिल उन्हें तंग करें, उन्हें परेशान करें। तो ये गुलाब दास का कैरेक्टर। मेरा नाम श्रुति है
मेरे कैरेक्टर का नाम कंचन है और मैं गुलाब दास की बीवी, इस परिवार की सांगाणी भवन की बेटी। मेरे भाई का घर है ये, शादी करके मुझे भेज दिया था, लेकिन शायद 1-2 महीने में ही कुछ जमा नहीं और फिर मैं आ गई कि हाँ मेरे भाई है ना, मुझे संभाल लेंगे। तो मैं पग फेरे की रस्म के वक्त आ गई, तब से मैं वापस नहीं गई हूँ और मैं बहुत पतिव्रता नारी हूँ। मैं सबको बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ, अगर कोई मेरी खिल्ली भी उड़ाता है तो उसे भी सीरियसली लेती हूँ। मैं एमिली को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ ठीक है ना, शादी हो गई सबके सामने तो अच्छी बात है, अब वो पत्नी है और क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो फिर उसे भी बनना चाहिए। सो आई फुली सपोर्ट हर। और मैं अपने पति को भी बहुत सपोर्ट करती हूँ और मैं भाभी को बहुत मानती हूँ, बाकी लोगों को नहीं मानती। नहीं प्लीज पहले गुंजन। अरे बाप रे, ये जो कैरेक्टर है एकदम ये। So I think I'm the villain in their love story and मैं चोर हूँ और मैं लालची हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं बाकी जगह ले लूँ। That's my main motive in life. तो जब एमिली घर पे आती है, मैं उसकी लाइफ को एकदम हेल्प करना चाहती हूँ। I want to make it difficult for her क्योंकि मेरा मेन एम है कि मेरी जो छोटी बेटी है पिंकी, उसकी शादी हो जाए आरव से और हम लोग के घर में सेट हो जाएं और यू नो वी हैव अ गुड लाइफ। सो दैट इज़ माय मेन एम and I'm going to make her life hell because of that, and yeah, so now that is how it is. She's my younger sister. Hi, I'm Shweta Rajput और इस शो में मैं प्ले कर रही हूँ पिंकी। पिंकी वही करती है जो उसकी मोटी बहन यानी कि बड़ी बहन बोलती है और पिंकी का एक ही सपना है आरव जी से शादी करना। उसे आरव जी चाहिए और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो घर में चोरियां करती है, कटोरी, पायल, झुमके सब कुछ चुराती है। मोटी बहन जो जो कहते हैं वो करती है, बस एक ही चीज़ के लिए कि उसे आरव जी से शादी करनी है और एमिली को इस घर में नहीं रहने देना है। इसके लिए हम बहुत कुछ कर चुके हैं, पाइप चढ़ चुके हैं, कहाँ कहाँ छुप चुके हैं, क्या क्या कर चुके हैं। एक बार तो शौक भी लग गया मुझे कि किसी तरह से इसका घूंघट उठ जाए और सबको पता चल जाए कि ये फिरंगन है, हमारे घर पे आएगी। और बस मेरा एक ही मोटिव है कि मुझे अपनी मोटी बहन अपनी गुंजन दी की तरह बनना है। And there's one more actor in our show, मानव सोनेटी, जो जमन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। अब यहाँ हमारे बीच नहीं है, मतलब यहाँ नहीं है। So he's playing my best friend in the show and he's a brilliant actor. You must watch his scene. He's fabulous. He is. And he's so funny. आपको कुछ पूछना? हाँ जी। मिश्का भाई, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब आपको इस शो के बारे में मालूम पड़ा तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? किस तरीके से आपको इस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ दिया गया था कि इस तरीके का शो है, एक फॉरेनर है और एक तरफ माँ है? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? My first reaction, like I said, was yes, foreigner. So when I got the narration, you know, narration khatam hua na, automatically I started clapping. Yeah. And I was like, shit, why did this happen? And I was like, great man, I hope I get to be a part of the show. उसके बाद एक लंबा प्रोसेस चला, there was a different mock shoots happening and all, and eventually when I finally got the part, मैं थोड़ा apprehensive था कि मैं शायद एक मुंबई का लड़का हूँ, बॉम्बे लड़का और ये छोटे शहर का लड़का है, तो मैं कैसे करूँगा इस पार्ट को। लेकिन क्रेडिट टू द मेकर्स, उनको मुझ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, पता नहीं क्या देख लिया मुझ पर, दे फेल्ट कि मैं कर लूँगा आराम से। तो जो भी मैंने कुछ किया है, कपड़े वैसे पहने हैं, ये बाली लगा दी, थोड़े बाल लंबे कर दिए, टाइम लोग एज गुजराती एज पॉसिबल, एंड आई होप यू एंजॉय। भाई ये कैरेक्टर मिशकात से कितना अलग है? ये बहुत अलग है। लाइक मिशकात बहुत ही एम्बिशियस है। आरव में एम्बिशन यही कि उसे अमेरिका जाना है, वहाँ क्या काम करना है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पे जाना है। उसको लगता है कि गोज है, ही सॉर्टेड, उसकी लाइफ बन गई है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं, मुझे अमेरिका का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ पे ही खुश हूँ अपने देश में। लेकिन आरव को लगता है कि वो गोंडल के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये उसके लिए अमेरिका बना है। तो एक बेसिक डिफरेंस है और सिमिलैरिटी है कि हम दोनों अपने माँ के लाडले हैं। इमली, आपको सेट पर कौन आपको परेशान करता है, कौन हेल्प करता है और कौन आपसे परेशान है? Who gives me the most परेशान? हाँ, सेट पे Three. वो किसको आप परेशान करती हैं? कौन आपसे परेशान है और कौन आपको हेल्प करता है? यस।
no one gives me actual pareshan. If it's pareshan, then it's him. He is the most pareshani. That's my love for her. That's what he says. But no, I'm just kidding. We have a lot of fun on set, so it's all just jokes and fun. And I think we all give pareshan to each other after like so much time together. But everyone helps me the most. Like everyone helps me a lot. I have someone who is especially with me at all times. His name is Rinku, and he is a star. He sits with me and he helps me learn all my dialogues, and yeah, so I definitely really appreciate him. But everyone else on this set also helps me. If he's not there, someone would quickly say to me, it's this, or it's like, no, it's not that, it's like this. So everyone supports me, and they don't even have to. They do it, and they're very good people, good in their hearts. So I'm very lucky. What is your family's reaction when you have accepted this show? My family, Yeah, your Family and friends reaction. So my family were extremely excited for me. Like they were even more excited than I was, because I was nervous. Like, what am I doing? What is this? But my mom and my dad and my whole family are my biggest fans. They have supported me in absolutely everything I wanted to do. I wanted to come to India before pursuing a career as an actress, because I was not an aspiring actress. I was not an aspiring actress, and I wanted to come to India. I wanted to live here, and my family said, "Yeah, go and live there." But luckily, I got work as well, so now I get the best of the both worlds. इमली आप जो शो है इसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी ड्रामा है, जैसे सास बहू वाला ड्रामा है, ननंद और वो सब है. सो क्या यूएसपी रहने वाली है इस शो की, क्योंकि कई सारे ऐसे शोज हैं जिनका स्टोरी लाइन ऐसा ही होता है. यहाँ पर क्या अलग देखने को मिलेगा? ऑल्सो जो शो है वो बहुत ही वुमेन ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है, तो मेल ऑडियंसेस के लिए क्या होने वाला है यहाँ पर? आजकल जो शोज बनते हैं टेलीविजन पे, मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल ओरिएंटेड. अगर कोई मेल ओरिएंटेड शो बनता है, उसका एक फिक्स टेम्पलेट आ गया है अभी कि एक लड़का होगा, मिसोजिनिस्ट होगा, लड़कियों से नफरत करेगा. एक लड़की होगी जो उससे प्यार करेगी, वो नफरत करेगा. फिर ये प्यार करेगी, वो नफरत करेगा. वह चलता रहेगा. लाखों करोड़ों की बातें करेंगे, डील्स की बातें करेंगे, लेकिन घर में बैठे रहेंगे. वो आजकल ऐसे सो कॉल्ड मेल ओरिएंटेड शो ऐसे बनते हैं. लेकिन हमारा every character is beautifully defined, and everyone has a brilliant role, male, female, anyone. And जो basic होता है कि एक female oriented show होता है, our television audiences, I think mainly females watch our show, and yeah, it's good to be a part of a female oriented show. I don't see any problem with it. So this is what you consider as a USP? Yes, it's a female oriented show, and I feel strongly that she'll be the USP. Like, is there any other hero on television who looks like her? The way she acts, the way she speaks. Unique selling point. Yeah, the USP is jazzy, yeah, for sure. Yeah. Oh, thank you so much. Thanks. एक फोटो करते हैं.